آج ہم اکٹھے خدا کے کلام کا مطالعہ عنوان سچی کتاب مقدس کے تحت کرتے ہیں۔ اس مضمون سے ہمیں یہ سمجھنے کا وقت ملے گا کہ کتاب مقدس کتنی قابل اعتماد ہے۔ ہمارے پاس وقت ہوگا کہ ہم تصدیق کریں کہ کتاب مقدس سچی باتوں کی گواہی دیتی ہے اور ہمیں وہ حقائق بتاتی ہے جو سچ ہیں۔ سیارہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں ایک چھوٹا سیارہ ہے جس کا قطر محض 12,760 کلومیٹر ہے۔ اس چھوٹے سے سیارے پر 7 ارب لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں۔ ان بے شمار لوگوں کے بارے میں سوچتے ہوئے میں سوچتا ہوں کہ یہ کتنا اچھا ہوگا اگر ہر کوئی خدا سے واقف ہو اور کائنات کو بنانے والے پر ایمان لائے۔ یہ زمین پناہ گزینوں کا شہر ہے جہاں گنہگار رہتے ہیں جنہوں نے آسمان پر گناہ کیا تھا۔ اس لیے اگر ہم سب گنہگار اس حقیقت کو سمجھیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آسمان کی کھوئی ہوئی بادشاہی کو بحال کریں تو اس سے زیادہ پرمسرت کوئی بات نہیں ہوگی۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ لوگوں کے گنہگار ہونے کا احساس کرنے اور توبہ کرنے اور آسمان کی بادشاہی کو بحال کرنے میں ناکام رہنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ کتاب مقدس غیر سائنسی اور غیر منطقی ہے۔ جب ہم منادی کرتے ہیں تو ہم آسانی سے ایسے لوگوں سے مل سکتے ہیں جو ایسا سوچتے ہیں۔ تو پھر کیا کتاب مقدس غیر سائنسی اور غیر منطقی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کتاب مقدس سائنس سے ہزاروں برس پہلے کی ہے اور ایک اعلیٰ جہتی دنیا کا احاطہ کرتی ہے۔ حتیٰ کہ اس لمحہ پر بھی خدا دنیا کے تمام لوگوں کو کتاب مقدس کے اندراج سے ایسی حیران کن سچائیاں دکھا رہے ہیں جنہیں سائنسدانوں نے ابھی تک دریافت نہیں کیا تھا۔ ہم سائنس اور کتاب مقدس کا موازنہ کرتے ہیں۔ سائنس وہ ہے جہاں سائنسدان پہلے مفروضے کا تعین کرتے ہیں اور کئی تجربات کے بعد اگر مفروضہ مثبت شواہد سے درست ثابت ہو تو نظریہ بڑے پیمانے پر قبول کیا جاتا ہے اور لوگ اسے سائنس کہتے ہیں۔ سائنسدان اپنے تجربات کا نتیجہ کسی کانفرنس میں پیش کرتے ہیں یا کسی سائنسی رسالے میں جمع کرواتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے ایک مفروضہ عام لوگوں تک پہنچتا ہے اور عام فہم بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک سائنسی نظریہ کو لوگوں میں وسیع پیمانے پر آشنا ہونے کے لیے کئی طریقوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تاہم کتاب مقدس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کتاب مقدس شروع سے ہی سچائی بتاتی ہے۔ کتاب مقدس میں یہ آبی چکر کو بیان کرتی ہے۔ یہ آبی چکر ہے۔ آسمان سے می برستا ہے، برسات کا پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے اور آبی بخارات بادل بنتے اور دوبارہ لوگوں ٹپکتے ہیں۔ لوگوں نے اس اصول کو بے شمار تجربات سے دریافت کیا تھا، لیکن یہ ہزاروں سال پہلے ہی کتاب مقدس میں درج ہو چکا تھا۔ کتاب مقدس مفروضہ نہیں بلکہ شروع سے ہی سچائی ہے۔ اس کا انحصار آدمیوں کے تجربات یا تحقیق کے نتائج پر نہیں ہے۔ کتاب مقدس شروع میں بھی سچ ہے، یہ درمیان میں بھی سچ ہے اور آخر میں بھی سچ ہے۔ کتاب مقدس شروع سے آخر تک اور ابد تک سچی ہے۔ اس کے برعکس سائنس میں اگرچہ لوگ کوئی نظریہ قائم کر لیں، لیکن وقت گزرنے، زمانہ بدلنے اور مزید علم حاصل ہونے کے ساتھ وہ نظریہ کبھی بھی الٹ سکتا ہے، بگڑ سکتا ہے یا یکسر غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ارض مرکزی نظریہ پر غور کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب لوگوں کو سائنسی علم تھا کہ کائنات کا مرکز زمین ہے اور سورج، چاند اور نظام شمسی کے سیارے جیسے کہ زہرہ، عطارد، مشتری اور مریخ سب زمین کے گرد گھومتے ہیں۔ اس نے اہم سائنسی علم کے طور پر کام کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کے ساتھ کیا ہوا لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ غلط تھا۔ شمسی مرکزی نظریہ درست ہے۔ اس طرح سے انسان کے نظریات آسانی سے بدلے جا سکتے ہیں۔ تاہم خدا کے ان کلمات کے بارے میں کیا کہیں گے جو انہوں نے ہزاروں سال پہلے کہے تھے؟ کیا آپ نے کبھی الفاظ کو بعد میں بدلتے دیکھا ہے؟ خدا کی باتیں جو انہوں نے ایک بار کہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے بلکہ تسلسل رکھتی ہیں، وہ ابد تک قائم رہتی ہیں۔ کتاب مقدس میں ایسا کوئی اندراج نہیں ہے کہ خدا کسی لفظ کو درست کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک تجربہ سے غلط ثابت ہوتا ہے۔ اس کے باوجود دنیا میں زیادہ تر لوگ خدا کے کلام کی نسبت سائنسدانوں کی باتوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ خدا نے شروع ہی سے سچائی کہی تھی اور آج بھی سچ بول رہے ہیں اور ابد تک سچائی میں موجود رہیں گے۔ اس لیے ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ خدا بذات خود سچائی ہے۔
इसलिए आज हम तस्दीक करते हैं कि किताब मुक़द्दस गैर साइंसी, गैर हकीकी और गैर मंतकी है या नहीं। मुझे लगता है कि हर बात की तस्दीक करने का बेहतरीन तरीका किताब मुक़द्दस से जांचना है। हम अय्यूब बाब 26 की तरफ जाते हैं। इस मौजूदा वक्त को नुक्तेच आगाज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अय्यूब की किताब 3500 साल पहले लिखी गई थी। वो शिमाल को कहाँ? फ़ज़ा में फैलाता है। इसका मतलब है कायनात में। और ज़मीन के बारे में क्या ख्याल है? ज़मीन को खला में लटकाता है। किताब मुक़द्दस कहती है कि खुदा ज़मीन को खला में लटकाते हैं। खुदा ज़मीन को खला में लटका देता है। अल्फाज 3500 साल पहले रहने वाले लोगों के साइंसी इल्म के मुताबिक तस्लीम नहीं किए जा सकते थे। जब तक आइज़क न्यूटन ने कशिश सिक़ल का कानून दरियाफ़त नहीं किया था, कोई भी आयत साथ में खुदा के अल्फाज को समझने के काबिल नहीं था। आज हम आइज़क न्यूटन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। जब तक न्यूटन ने कशिश सिक़ल का कानून दरियाफ़त नहीं किया था, कोई भी इस हकीकत की साइंसी वजाहत नहीं कर सका था कि सैयारे खला में एक दूसरे को खींचने वाली ख़ास कशिश क़ुव्वत से तैर रहे हैं। न्यूटन ने तकरीबन 400 साल पहले कशिश सिक़ल का कानून दरियाफ़त किया था, लेकिन हमारे खुदा ने तकरीबन 3500 साल पहले अय्यूब के वसीला इस सच्चाई को 3000 साल पहले दर्ज किया था। अय्यूब बाब 26 आयत 7 में खुदा ने कहा, वो शिमाल को फ़ज़ा में फैलाता है। और उन्होंने क्या किया था? और ज़मीन को खला में लटकाता है। उस वक्त की मारिफत के साथ खुदा के इन कलमात को समझने का कोई तरीका नहीं था। कोई इसे समझ न सका। ये लिखा है कि खुदा जिनका कलाम साइंस से 3500 साल पहले है, ज़मीन को खला में लटका देते हैं। खला में ज़मीन के लटकने की हकीकत 3000 साल पहले एक इंदराज में ज़ाहिर होती है, लेकिन हकीकत में खुदा ने जब से आसमानों और ज़मीन को बनाया था, ज़मीन को लटका दिया था। क्या उन्होंने नहीं किया था? आसमानों और ज़मीन को बनाने वाले खुदा सब कुछ जानते हैं। इससे पहले कि उन्होंने नबियों से किताब मुक़द्दस को इंसानी ज़बान में दर्ज करवाया था कि इसे आने वाली नस्लों तक पहुँचाया जा सके, वो सब कुछ जानते थे। लेकिन हमारी निजात के लिए खुदा ने वो बातें दर्ज की जिन्हें वो पहले ही जानते थे और वो खुद कर भी चुके थे। लंबे अरसे से खुदा ने हमारी निजात के लिए काम किया है। ताहम साइंस ने चंद सौ साल पहले ये हकीकत दरियाफ़त की थी कि ज़मीन खला में लटकी हुई है। आदमियों का साइंसी इल्म बहुत मुख्तसर है। इसके बावजूद लोग बेवकूफ़ी से कहते हैं कि किताब मुक़द्दस गैर साइंसी या गैर मंतकी है। जब भी मैं इस किस्म की बात सुनता हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है। सिर्फ यही नहीं है। हम अय्यूब बाब 36 आयत 24 की तरफ जाते हैं। उसके काम की बड़ाई करना याद रख, जिसकी तारीफ लोग गाते रहे हैं। सब लोगों ने इसको देखा है। इंसान उसे दूर से देखता है। देख, खुदा बुजुर्ग है और हम उसे नहीं जानते। उसके बरसों का शुमार दरियाफत से बाहर है, क्योंकि वो पानी के कतरों को ऊपर खींचता है जो उसी के अबखरात से मीनहा की सूरत में टपकते हैं, जिनको अफलाक उंडीलते और इंसान पर कसरत से बरसाते हैं। इस आयत में खुदा आबी चक्कर के बारे में बात कर रहे हैं। ये लिखा है कि खुदा पानी के कतरे ऊपर खींचते हैं। जब पानी बुखारात बन जाता है तो वो किस में बदल जाता है? पानी जो दरियाओं, समंदरों और हमारे आसपास होता है, बुखारात में बदल जाता है। और किताब मुक़द्दस इसे यूं बयान करती है कि वो पानी के कतरों को खींचते हैं। जैसा कि ये कहता है, क्योंकि वो पानी के कतरों को ऊपर खींचता है जो उसी के अबखरात से मीनहा की सूरत में टपकते हैं, जिनको अफलाक उंडीलते और इंसान पर कसरत से बरसाते हैं। पानी हुआ में पानी के छोटे कतरों या बर्फ़ के ज़रात में बदल जाता है और बादल बनने तक आपस में चिपक जाता है और मुनासिब दर्जा हरारत पर ज़मीन पर मौजूद बनी नूह इंसान पर गिरता है। दोबारा बात करें तो सतही ज़मीन पर पानी आसमान तक जाता है और फिर ये कसीफ होकर ज़मीन पर मौजूद बनी नूह इंसान पर गिरता है। ये आबी चक्कर है। खुदा ने 3500 साल पहले ही अय्यूब के ज़रिए आबी चक्कर की वजाहत की थी। ताहम ये 16वें और 17वें सदियों की बात है जब साइंसदानों ने आबी चक्कर को साबित करना शुरू किया था।
16वें और 17वें सदियों में फ्रांसीसी साइंसदान पिरालट और मिरीट ने दरियाए सीन के निकासी आब के तास में बारिश और बहाव का हिसाब लगाया और इन तहकीकात को इल्मी दुनिया के सामने रखा। उस वक्त से लोग समझ गए कि बारिश कैसे होती है और कैसे गिरदुश करती है। ज़मीन की सतह का पानी जो ज़मीन पर और दरियाओं और समंदरों और बहरे का है, बुखारात में बदल जाता है। तब आबी बुखारात हुआ में बादल बन जाते हैं और मुनासिब दर्जा हरारत पर बारिश की सूरत में दोबारा लोगों पर टपकते हैं। ये सिर्फ 16वें और 17वें सदी से ही था कि बनी नूह इंसान ने आबी चक्र यानी बारिश होने की वजह और पानी कैसे बुखारात बनकर हवा में ऊपर चला जाता है को समझा। ये 400 साल से कुछ ज़्यादा अरसा पहले की बात है कि साइंस ने इस सच्चाई को साबित किया था। ताहम खुदा ने इन सब चीज़ों को कब दर्ज किया था? उन्होंने 3500 साल पहले आबी चक्र के बारे में अय्यूब से कलमबंद करवाया था। सिर्फ वो लोग जो किताब मुक़द्दस के बारे में नहीं जानते, वो कहते हैं कि किताब मुक़द्दस गैर साइंसी और गैर मंतकी है, या ये कहते हैं कि इसमें ख़याली बातें हैं जो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं हैं। वो बग़ैर सोचे समझे किताब मुक़द्दस की तज़लील करते हैं। ये वो हैं जो ऐसी बातें कहते हैं जिनकी बुनियाद हक़ाइक़ पर नहीं होती है। सिर्फ ये दो हक़ाइक़ कि ज़मीन खला में लटकी हुई है और पानी गर्दिश करता है, ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि किताब मुक़द्दस हकीकत है। इससे पहले कि न्यूटन ने इल्मी दुनिया को ये खबर दी कि कशिश सिकल से ज़मीन खला में लटकी हुई है, लोगों ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि ज़मीन खला में लटकी हुई है। इंडिया में कदीम लोगों का ख्याल था कि ज़मीन चपटी है और वो एक बड़े कुचवे की पश्त पर खड़ी है। ज़मीन के बारे में मुबहम तौर पर लोग ऐसा सोचते थे। निशाह सानिया के बाद ही लोग जहालत की तारीकी से यू के बाद दीगरे बीदार होने लगे और साथ साथ साइंस भी तरक्की करने लगी। बहुत से साइंसदानों ने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में और उनमें दिलचस्पी लेना शुरू की। बारिश कैसे होती है? ये इतनी ज़्यादा बारिश कहाँ जमा थी जो यूं बरस पड़ी? जैसा कि लोगों के पास इस किस्म के सवालात थे, तो साइंस ने उन्हें जवाबात देने के लिए तरक्की की। बनी नूह इंसान को खुदा के पैदा करदा खुदकार निज़ाम के बारे में साइंसी इल्म हासिल किए सिर्फ 400 साल ही हुए हैं। खुदा ने पहले ही इस साइंसी हकीकत को दर्ज कर रखा है कि वो पानी को हवा में उठाकर मुनासिब दर्जा हरारत पर ज़मीन पर बरसाते हैं। 3500 साल पहले खुदा ने बनी नूह इंसान को दिखा दिया था कि उन्होंने इन तमाम निज़ामों को चलाया है। साइंस चाहे कितनी ही तरक्की कर ले, ये किताब मुक़द्दस से आगे नहीं जा सकती। किताब मुक़द्दस हमेशा साइंस से हज़ारों साल आगे रहती है। खुदा ने इस दुनिया में होने वाली चीज़ों की नबूवत की थी। उन्होंने आइंदा चीज़ों के बारे में पेशिंगोई की थी। अगरचा उस ज़माना में रहने वाले लोग खुदा के कलाम को समझने से कासिर थे, लेकिन बाद के ज़माना के लोगों ने देर से खुदा के कलाम को समझा और वो कहते हैं कि खुदा का हर कलाम दुरुस्त और सच्चा है। खुदा का कोई भी कलाम नज़र अंदाज करने लायक नहीं है। खुदा के कलमात हमेशा सच होते हैं और यकीनी तौर पर पूरी होने वाली बातों के मुताल्लिक होते हैं। उन्हें बाद में पता चलता है कि किताब मुक़द्दस हकीकत है। किताब मुक़द्दस में न सिर्फ साइंसी सच्चाइयाँ हैं बल्कि कई तारीखी सच्चाइयाँ भी हैं। दुनिया की तारीख में होने वाली चीज़ों को खुदा ने किताब मुक़द्दस में दर्ज किया था। आए हम इकट्ठे इज़रा बाब 1 आयत 1 की तरफ जाते हैं। ये लिखा है कि और शाही फारिस खूरस की सल्तनत के पहले साल में, इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो यर्मियाह की ज़ुबानी आया था पूरा हो, खुदावंद ने शाही फारिस खूरस का दिल उभारा। सो उसने अपनी तमाम मुमलकत में मुनादी कराई और इस मजमून का फरमान भी लिखा कि शाही फारिस खौरस यूं फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने ज़मीन की सब मुमलकतें मुझे बख्शी हैं और मुझे ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदाह में है उसके लिए एक मुस्कन बनाऊं। बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो, उसका खुदा उसके साथ हो और वो यरूशलेम को जो यहूदाह में है जाए और खुदावंद इसराइल के खुदा का घर जो यरूशलेम में है बनाए। खुदा वही है। जैसा कि हमने दानिएल की किताब से फारिस के बारे में मुतालिया किया है कि सल्तनत फारिस वो सल्तनत थी जिसके लोग सूरज देवता मिथरा की प्रस्तुश करते थे। पहले वो ज़रतश्त पर ईमान रखते थे।
ताहम इस आयत में शाह फारिस ने, जिसका इसराइल के खुदा से कोई ताल्लुक नहीं था, खुदा यहोवाह की तमजीद करने का ऐलान जारी किया था। किस चीज़ ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था? ये 536 कब्ल अज़ मसीह में था, जब शाह फारिस खुरस ने आसमान के खुदा के लिए हेकल बनाने का ऐलान किया था। आज से 2500 साल पहले खुदा पर ईमान न रखने वाले शाह फारिस खुरस ने यहूदा के यरूशलेम में खुदा के लिए हेकल बनाने का शाही ऐलान क्यों जारी किया था? हम आयत 3 से जारी रखते हैं। बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो, उसका खुदा उसके साथ हो, और वो यरूशलेम को जो यहूदा में है जाए, और खुदावंद इसराइल के खुदा का घर जो यरूशलेम में है बनाए। खुदा वही है। खुरस ने खुदा की हेकल की तामीर के लिए एक ऐलान किया और हेकल की तामीर के लिए बहुत ज़्यादा मवाद के साथ बनी इसराइल की हमायत की। हत्ता कि उसने उन इसराइलियों को भी आज़ाद कर दिया जिनको बाबुल ने असीर कर लिया था, ताकि वो अपने मुल्क में वापस जाकर खुदा के लिए हेकल बना सकें। क्या ये हैरत अंगीज़ नहीं है? इसके बारे में सोचें कि किसी भी ज़माना में अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क को फ़तह कर लेता है, तो फ़तह पाने वाले लोगों को ग़ुलाम बनकर अपने दुश्मन की खिदमत करनी पड़ती है। ख़ास तौर पर कदीम ज़माने में ये एक आम और मामूल का अमल था। जब खुरस ने बाबिल को फ़तह किया, तो इसराइली बाबिल के असीर होकर वहाँ रह रहे थे। चूँकि इसराइलियों ने बाबुल के बाशिंदों की अपने ग़ुलामों के तौर पर खिदमत की थी, इसलिए जब बाबुल फ़ारिस के हाथों फ़तह हुआ तो उन्हें फ़ारसियों के ग़ुलाम बनकर उनकी खिदमत भी करनी पड़ी। ये तो ज़ाहिर था कि उन्हें फ़ारसियों के ग़ुलाम के तौर पर खिदमत करनी चाहिए। यहाँ हैरत अंगीज़ बात वो है जो खुरस ने की थी। खुरस ने ऐसा बर्ताव नहीं किया जैसा कि अक्सर फ़ातहीन करते हैं, बल्कि उसने बनी इसराइल को आज़ाद कर दिया। हत्ता कि मौरखीन भी कहते हैं कि ये बहुत ही मुज़हका खीज़ है। दूसरे अल्फाज में शाह फारिस खुरस ने इसराइलियों के लिए फातिह का किरदार अदा नहीं किया था, बल्कि उसने इसराइलियों को बाबुल के जुल्म से आज़ाद करने वाले के तौर पर काम किया था। उसने इसराइलियों को ग़ुलामी की क़ैद से आज़ाद कराया। आम तौर पर सल्तनतों पर हुक्मरानी करने वाले शहनशाह कौमों को ग़ुलाम बनाते थे, जिन्हें वो फ़तह करते थे। उन्हें ग़ुलाम बनाकर उनसे अपने मुल्क के लिए सख्त काम करवाते थे। आम तौर पर ऐसा ही होता है। ताहम शाह फारिस खुरस ने इसराइलियों को ग़ुलाम नहीं बना या था जो उस सल्तनत के लोग थे जिसे उसने फ़तह किया था, बल्कि उसने इसराइलियों को आज़ाद किया था कि वो खुदा के लिए हेकल बनाएं और खुदा की इबादत कर सकें। अगर शाह फारिस खुरस खुदा यहोवाह पर ईमान रखता, तो वो इसराइलियों को इसी खुदा पर एतकाद की वजह से आज़ाद कर सकता था। ताहम मादी फारिस की सल्तनत, जिस पर उसने उस वक्त हुक्मरानी की थी, रवायती तौर पर ज़रतश्ती इज़म या मिथरा इज़म की सूरत में सूरज देवता की प्रस्तुश करती थी। किसी और मज़हब पर ईमान रखने वाली सल्तनत ने खुदा यहोवाह पर ईमान रखने वाले लोगों को ग़ुलाम नहीं बनाया था, बल्कि उन्हें आज़ाद कर दिया था। क्या यह हैरत अंगीज़ नहीं है? अब हम यसायाह बाब 45 आयत 1 से खुरस के ऐसा करने की वजह मालूम करते हैं। खुदावंद अपने ममसूह खुरस के हक़ में यूं फरमाता है कि मैंने उसका दहना हाथ पकड़ा कि उम्मतों को उसके सामने ज़ेर करूं और बादशाहों की कमरें खुलवा डालूं और दरवाज़ों को उसके लिए खोल दूं और फाटक बंद न किए जाएंगे। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और नाहमवार जगहों को हमवार बना दूंगा। मैं पीतल के दरवाज़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के बींडों को काट डालूंगा। और मैं जुल्मात के ख़जाने और पोशीदा मकानों के दफीने तुझे दूंगा, ता कि तू जाने कि मैं खुदावंद इसराइल का खुदा हूँ, जिसने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मैंने अपने खादिम याकूब और अपने बरगुज़ीदा इसराइल की खातिर तुझे नाम लेकर बुलाया। मैंने तुझे एक लक़ब बख्शा, अगरचा तू मुझको नहीं जानता। मैं ही खुदावंद हूँ और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैंने तेरी कमर बांधी, अगरचा तूने मुझे ना पहचाना, ताकि मशरिक़ से मग़रिब तक लोग जान लें कि मेरे सिवा कोई नहीं। मैं ही खुदावंद हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। मैं ही रोशनी का मूजिद और तारीकी का खालिक हूँ। मैं सलामती का बानी और बुला को पैदा करने वाला हूँ। मैं ही खुदावंद ये सब कुछ करने वाला हूँ।
यसायाह बाब 45 की नबूवत खोरस के इसराइलियों को आज़ाद करने से तकरीबन 170 साल पहले लिखी गई थी। इसमें नबूवत की गई थी कि खोरस बादशाहों का बादशाह होगा और बहुत सी उम्मतें उसके सामने ज़ेर होंगी। यसायाह की नबूवत के ज़रिए खुदा ने कहा कि उन्होंने खोरस को नाम लेकर बुला या और उसे एक लक़ब बख्शा। खोरस ने सोचा कि उसके वालिदैन ने उसका नाम रखा है, लेकिन यसायाह की नबूवत को पढ़ने के बाद वो ये जानकर हैरान होने के सिवा कुछ ही ना कर सका कि खुदा ने उसे नाम लेकर बुलाया और उसे एक लक़ब बख्शा। खोरस के इसराइलियों को आज़ाद करने से 170 साल पहले हर काम जो वो मुस्तकबल में करने वाला था तफसीलन एक किताब में दर्ज था। अगर आप वो होते तो आप क्या महसूस करते? खोरस बादशाह यसायाह की नबूवत को देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि इस नबूवत ने 170 साल पहले उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। तब उसे खुदा की अज़मत का एहसास हुआ और कहा, आसमान का खुदा यहोवा ही सच्चा खुदा है, वो खुदाओं का खुदा है। ये उसके लिए वाकई हैरत अंगेज था, क्योंकि तारीख में कोई दूसरा देवता ऐसा नहीं कर सका था। इसीलिए खोरस ने कहा, उसके लोगों में से कोई यरूशलेम को जाए और खुदा के लिए हैकल बनाए। यसायाह बाब 45 आयत 12 से 13 में खुदा की नबूवत खोरस मेरा शहर बनाएगा दर्ज है। हम भी इन आयात को देखते हैं। इससे पहले आए हम आयत 11 पढ़ते हैं कि खोरस ने इसराइलियों को उनके वतन जाने की इजाज़त क्यों दी और उन्हें खुदा के लिए हैकल बनाने का हुक्म दिया था। खुदावंद इसराइल का कुद्दूस और खालिक यूं फरमाता है कि क्या तुम आने वाली चीज़ों की बाबत मुझसे पूछोगे? क्या तुम मेरे बेटों या मेरी दस्तकारी की बाबत मुझे हुक्म दोगे? मैंने ज़मीन बनाई और उस पर इंसान को पैदा किया, और मैं ही ने, हाँ, मेरे हाथों ने आसमान को ताना और उसके सब लश्करों पर मैंने हुक्म किया। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैंने उसको सदाकत में बर्पा किया है और मैं उसकी तमाम राहों को हमवार करूँगा। वो मेरा शहर बनाएगा और मेरे उसीरों को कैसे बग़ैर कीमत और इज़लिए आज़ाद कर देगा। खोरस ये कहकर वाकई हैरान हुआ कि वो खुदा के असीरों को आज़ाद करेगा। अगर मोरखीन ने थोड़ा और किताब मुक़द्दस का मुतालिया किया होता और सच्चाई को जाना होता तो वो समझ सकते थे कि खोरस ने अपना ज़हन बदल लिया था, क्योंकि उसने 170 साल पहले दर्ज यसायाह की किताब में अपने बारे में नबूवत देखी थी। ताहम चूंकि वो ये नहीं जानते थे और आम ख्याल से खोरस को शहनशाह या फातिह के नुक्ते नज़र से देखते थे, तो वो समझ न सके। खोरस ने मगलूब लोगों को गुलाम क्यों न बनाया, बल्कि उन्हें आज़ाद कर दिया, हालांकि वो इसराइल का बादशाह नहीं था। अगर वो इसराइल का बादशाह था तो वो अपने लोगों को गुलामी से छुड़ाने की गरज से जंग कर सकता था। ताहम वो इसराइल का बादशाह नहीं था, वो सल्तनती फ़ारिस का बादशाह था। इसलिए ये नाकाबिल यकीन था कि उसने इसराइलियों को गुलाम नहीं बना या था, बल्कि उन्हें आज़ाद कर दिया था। ताहम खोरस के इसराइलियों को आज़ाद करने की एक वजह थी। ये नबूवत की वजह से था जो यसायाह नबी ने इसराइलियों के आज़ाद होने से 170 साल पहले लिखी थी। और वो मेरे शहर को दोबारा बनाएगा और मेरे इसीर होने वालों को आज़ाद करेगा, मगर दाम या अजर के लिए नहीं। जब खोरस ने इस नबूत को देखा तो इज़रा बाब 1 आयत 1 में दर्ज बातें रूनमा होने लग गईं। इन सब बातों से हम मुकम्मल तौर पर समझ सकते हैं कि खुदा इंसानी तारीख़ का इंतज़ाम करते हैं और साइंस से भी सबकत ले जाते हैं। हर चीज़ की तदबीर और इंतज़ाम खुदा के हाथ में है। ये सिर्फ खोरस बादशाह का मामला ही नहीं है जो तारीख़ी लिहाज से किताब मुक़द्दस के हकीकत होने को साबित करती है। अब दानी एल की किताब की नबूवत से हम दोबारा तस्दीक करते हैं कि खुदा ही ज़माने और तारीख़ की क़ियादत करते हैं। हम दानी एल बाब 8 आयत 19 से देखते हैं। दानिएल बाब 2 के ज़रिए खुदा ने दानिएल को मुस्तकबल करीब में ज़ाहिर होने वाली सल्तनतों के बारे में बयान किया, और आखिर में उसने नबूवत की कि रोमी सल्तनत से एक मजहबी तंजीम खुदा के खिलाफ खड़ी होगी। हम दानिएल बाब 8 आयत 19 से देखते हैं, और कहा कि देख, मैं तुझे समझाऊंगा कि कहर के आखिर में क्या होगा, क्योंकि ये अम्र आखिरी मुकर्ररा वक्त की बाबत है। जो मेंढा तूने देखा उसके दोनों सींग मादी और फारिस के बादशाह हैं।
जब दानिएल ने ये मुकाशफा देखा तो ये बाबुल की सल्तनत का वक्त था। ये अब तक मौजूद थी और अभी गिरी नहीं थी। वो बातें जो खुदा ने दानिएल को फरिश्ता के वसीला बताई थीं आयत 20 में है। जो मेंढा तूने देखा उसके दोनों सींग मादी और फारिस के बादशाह हैं। ये मादी फारिस सल्तनत के बाबुल को फतह करने से पहले की बात है। आयत 21। और वो जिसीम बकरा किस मुल्क का बादशाह? यूनान का बादशाह है। जब हम यूनान के बारे में सोचें तो हमारे जहन में एक मशहूर बादशाह सिकंदर आज़म आता है। वो आलमी तारीख में मशहूर है और वो जिसीम बिकरा यूनान का बादशाह है और उसकी आंखों के दरमियान का बड़ा सींग पहला बादशाह है। और उसके टूट जाने के बाद उसकी जगह जो चार और निकले वो चार सल्तनतें हैं जो उसकी कौम में कायम होंगी, लेकिन उनका इक़्तिदार उसका सा न होगा। जैसा कि हमने दानिएल बाब 2 और बाब 7 की नबूवत का मुतालिया किया है तो हम उस हिस्से को याद रख सकते हैं। बाबुल की तारीख के आखिरी हिस्से में जाहिर होने वाला मेंढा जिसके 2 सींग थे किसे जाहिर करता है? ये मादी और फारिस के बादशाहों को जाहिर करता है। दानिएल बाब 7 से हमने पहले ही सीखा है कि सल्तनत फारिस ने मुत्तहद होकर बाबुल की सल्तनत को उलट दिया था और अपनी सल्तनत को वसात दी थी। दानिएल बाब 8 में इसे मेंढे के तौर पर दिखाया गया था और नबूवत की गई थी कि मादी और फारिस के बादशाह उठेंगे। हम आयत 21 पढ़ना जारी रखते हैं। और वो जिसीम बिकरा यूनान का बादशाह है। इसका मतलब है कि सिकंदर आज़म यूनान से जाहिर होगा और उसकी आंखों के दरमियान का बड़ा सींग, बहुत बड़ा सींग, पहला बादशाह है। वो सिकंदर आज़म है। सिकंदर आज़म ने 25 साल की उम्र में अपनी मुहिम शुरू की थी और उसने 33 बरस की उम्र तक 8 साल के मुख्तसर अरसे में लड़ाइयों के जरिए कई मुमालिक फतह किए थे। फिर उसने एक बहुत बड़ी सल्तनत बनाई जो मकदूनिया से हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। सिकंदर आज़म अगरचा बहुत ताकतवर था पर वो इतना वसी इलाका फतह करने के फौरन बाद मर गया। उसकी मौत के बाद सल्तनत तकसीम हो गई। इसे कितने हिस्सों में तकसीम किया गया था? इस वसी ज़मीन को सिकंदर के 4 जर्नीलों ने 4 हिस्सों में तकसीम किया था जिनके नाम किसिंडर, सुलॉक्स, लासीमाक्स और टूलमी थे। किताब मुक़द्दस इसे 4 और निकले के तौर पर बयान करती है। दानिएल बाबुल की सल्तनत के ज़माने में रहता था। जब वो बाबुल की सल्तनत के दिनों में रह रहा था तो वो कैसे जान सकता था कि मुस्तकबल में उठने वाली यूनानी सल्तनत 4, 5 या 10 में तकसीम हो जाएगी? जैसा कि हर काम हर ज़माने और तारीख को ले जाने वाले खुदा की दूर अंदेशी से होता है तो ये नबूवतें तारीख में बिल्कुल ठीक पूरी हुईं। चूँकि सब चीज़ें खुदा की दूर अंदेशी में हैं, इसलिए ये नबूवत की जा सकती थी कि यूनान नामी सल्तनत ज़ाहिर होगी। नाम यूनान बाबुल की सल्तनत के ज़माने में बोला जाता था जब दानिएल जिंदा था। आप क्या सोचते हैं? क्या किताब मुक़द्दस गैर साइंसी है? क्या ये गैर तारीखी है? किताब मुक़द्दस वाज़े तौर पर हमें वो नबूवतें दिखाती है जिनकी कोई भी पेशीन गोई या नबूवत करने के काबिल नहीं था। ये किसके अल्फाज हैं? इसकी वजह यह है कि किताब मुक़द्दस खुदा का कलाम है। खुदा साइंस के तमाम उसूलों पर सबकत ले जाते हैं और उन्होंने हमें अहम तरीन नबूवतों से आगाह किया है। दानिएल बाब 8, यसायाह बाब 45 और इज़रा बाब 1 की नबूवतों से हम पूरी तरह समझ सकते हैं कि तारीख बहुत ही है और तमाम ज़मानों का इंतज़ाम खुदा के हाथों के वसीला होता है। तो फिर अब हम आसमान की बादशाही के बारे में सोचने के सिवा कुछ ही नहीं कर सकते जहां हम मुस्तकबल में जाएंगे। साइंस, तारीख और सब कुछ खुदा की मर्जी से हुआ है। खुदा ने हमें साइंसी और तारीखी हकीकतें पहले ही दुरुस्त और बेनक्स तरीके से बता दी थीं। उनमें से हम कह सकते हैं कि नबूवत का निचोड़ दानिएल बाब 7 है। छोटे सींग ने आकर उन तीनों सींगों को उखाड़ फेंका।
یہ واقعی خدا کا شاندار کام تھا۔ مجھے دوبارہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ سب نے پہلے ہی اس کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا وجود نہیں رکھتے، اور ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی نہیں ہے؟ بے شک خدا واقعی وجود رکھتے ہیں۔ اگر وہ وجود نہیں رکھتے تو کون بنی نوع انسان کی تمام تعلیمات اور سائنس سے ماورا زمانے اور تاریخ کی قیادت کر سکتا ہے؟ ہر چیز پر حکمرانی کرنے کی اس قسم کی بڑی قوت کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ خدا کے سوا کون یہ عظیم کام کر سکتا ہے؟ ان میں بڑی قوت ہے۔ یہ واقعی ہمارے خدا کا شاندار کام ہے، یعنی قادر مطلق خدا کی حیرت انگیز دور اندیشی۔ سائنسی دلائل اور تاریخی حقائق سے ہم نے تصدیق کی ہے کہ خدا واقعی وجود رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے خدا نے خورس بادشاہ کو بھی بنایا جو غیر قوم سے تھا اور ان کی تمجید کرتا تھا۔ خورس بادشاہ عالمی تاریخ میں خورس اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خدا کی دور اندیشی میں دنیا کے بادشاہ بھی خدا کے ساتھی کارکنوں کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے خدا کی حیرت انگیز دور اندیشی ہے۔ تو پھر جب ہم خدا کے ان عظیم کاموں کے گواہ ہوں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ میرا آج کا آخری سوال ہے۔ آئیں ہم مکاشفہ باب 21 آیت 1 سے دیکھتے ہیں۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھے دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ خدا نے کہا کہ ان کی باتیں سچ اور برحق ہیں، نہ کہ جھوٹی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہماری آنکھوں کا ہر آنسو پونچھے دیں گے اور ہمیں ابدی بادشاہی میں داخل ہونے دیں گے، جہاں موت، ماتم یا درد نہیں، بلکہ صرف امن اور شادمانی، خوشی اور مسرت ہے جو ابد تک رہے گی۔ آج تک کس نے سائنس اور تاریخ سمیت تمام چیزوں کی قیادت کی اور انہیں آگے بڑھایا؟ اب لوگ آہستہ آہستہ اس سے واقف ہو رہے ہیں۔ 3000 سال گزرنے کے بعد لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ سچ ہے کہ خدا نے دنیا کو پیدا کیا تھا۔ کتاب مقدس کے اندراجات حقیقت ہیں اور کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ کیا ایوب کے زمانہ میں لوگوں کے پاس یہ سائنسی علم تھا؟ بالکل نہیں۔ خدا کی روح سے تحریک پا کر ایوب نے خود درج کیا تھا۔ تاہم کتاب مقدس کے تمام اندراجات ان دنوں میں سچ ثابت ہوئے ہیں۔ خورس کے اسرائیلیوں کو آزاد کرنے سے 170 سال پہلے یسایاہ کی کتاب میں اس کے بارے میں کئی اندراجات موجود ہیں۔ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ خورس کون ہے۔ تاہم 170 سال گزرنے کے بعد سلطنت فارس کے بادشاہ خورس نے بابل کے اسیر ہونے والے تمام اسرائیلیوں کو رہا کیا اور انہیں خدا کے لیے ایک ہیکل بنانے کا حکم دیا۔ دانی ایل نبی کے ذریعے، جو بابل کی سلطنت کے زمانے میں رہ رہا تھا، خدا نے نبوت کی تھی کہ یونان کی سلطنت سینکڑوں سالوں بعد ظاہر ہوگی۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کا کلام کتنا سچ اور برحق ہے۔ مکاشفہ باب 21 بھی کتاب مقدس کا حصہ ہے، صحیح؟ خدا نے یہ کہتے ہوئے ان کے کلام پر مہر لگائی کہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں، اور کہا کہ تم دوبارہ موت کے جوئے میں نہ جتو گے۔ اس جہان میں جہاں ہم جائیں گے آہ و نالہ نہیں ہوگا، تمہارے مستقبل میں درد نہ ہوگا۔ ایسے بہت سے الفاظ یہاں سے مٹا دیے گئے ہیں، لیکن جب ہم اس کے پیچھے کچھ پوشیدہ مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں بہت سی چیزیں موجود ہیں۔
آسمان کی بادشاہی میں ہم بوڑھے نہیں ہوں گے، صحیح؟ نہ ہی ہم بدصورت نظر آئیں گے، ہم سب خوبصورت فرشتوں میں بدل جائیں گے۔ لوگ خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اچھے نہیں لگتے جبکہ کچھ لوگ خوبصورت ہیں۔ اے خدا، آپ نے سب کچھ اتنا غیر منصفانہ کیوں بنایا؟ ہمیں یوں بڑبڑانا نہیں چاہیے کیونکہ ہم ابھی تخلیق کے عمل میں ہیں۔ آئیں ہم انتظار کریں اور دیکھیں کہ ہم مکمل طور پر تخلیق ہونے کے بعد کیسے نظر آئیں گے۔ آپ سب ابھی ہم بنائے جا رہے ہیں۔ کچھ بھی مکمل طور پر تخلیق نہیں کیا گیا ہے اور سب کچھ اب تک روحانی تخلیق کے عمل میں ہے۔ سب کچھ کتاب مقدس کے کلام کے مطابق پورا ہوگا۔ آئیں ہم اس پر اور اعتقاد رکھیں۔ آئیں ہم ایک اور آیت سے معلوم کرتے ہیں۔ یہ مکاشفہ باب 22 آیت 1 ہے۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برہ کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ ابدالآباد بادشاہی کریں گے۔ یہ الفاظ کہاں درج ہیں؟ جیسا کہ یہ کتاب مقدس میں درج الفاظ ہیں تو یہ یقینی طور پر پورے ہوں گے۔ آیت 6 سے جاری رکھتے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں سچ اور برحق ہیں، چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتہ کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ مکاشفہ باب 22 میں یہ لکھا ہے کہ وہ ابدالآباد بادشاہی کریں گے۔ یہ الفاظ بھی کتاب مقدس میں سچائی ہیں۔ مکاشفہ باب 21 اور 22 ہمارے مستقبل میں شاندار جلال کو بیان کرتے ہیں۔ خدا نے خود ہمیں ان الفاظ سے قائل کیا ہے کہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ غور سے سنیں۔ اس امید کے ساتھ آئیں ہم ایمان کی دوڑ اور زیادہ زور سے دوڑیں تاکہ کوئی بھی آسمان کی بادشاہی کے راہ میں پیچھے نہ رہ جائے۔ یہ امید کرتے ہوئے کہ سیون کے تمام اراکین اکٹھے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، میں آج کا وعظ ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔